Shahid Nawaz official YouTube channel. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے. معزز دوستو، آج کی شب 11 ربیع الاول سن 1445 ہجری جو 12 ربیع الاول میں بدل چکی ہے، بمطابق 28 ستمبر 2023 بروز جمعرات ہے، اور میں یہاں زندہ دلانے لاہور سے جامع مسجد حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ میں ہمارے مخدوم مکرم حضرت مولانا قاری علی الدین شاکر دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں. میرے ساتھیوں، اسٹیج کھچا کھچ علماء کرام سے بھری ہوئی ہے. حضرت مولانا رضوان نفیس صاحب، حضرت مولانا عبدالشکور حقانی دامت برکاتہم، حضرت مولانا یعقوب فیض صاحب، باقی جملہ علماء کرام، اللہ ان سب کی عمروں میں برکات عطا فرمائے. میرے دوستو، مجھ سے قبل بھی آپ گفتگو سن چکے ہیں اور تلاوت اور نعت چل چکی ہے. میرے بعد بھی یقیناً یہ پروگرام جاری اور ساری رہے گا. میرے ساتھیوں، میں چند باتیں آپ کی خدمت میں سیرت کے حوالے سے کرنے لگا ہوں. بس آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ ہے جس کو رب کریم نے بھی تعریف کی زبانوں میں بیان فرمایا ہے. میں کسی بندے سے پیار کرتا ہوں تو اس کے چہرے دیکھنے کی بات بار بار کروں گا کہ میں نے جب ان کی زیارت کی، میں نے جب ان کو دیکھا، ہم نے جب ان کا شربت دیدار پیا، ہماری ان کی آنکھوں سے آنکھیں چار ہوئی. اس طرح کے انداز میں بندہ بات کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیں، سورت نمبر 2 سورت البقرہ ہے، پارہ نمبر 2 کا پہلا صفحہ ہے. رب کریم بات فرماتے ہیں، ہم نے کس کا چہرہ دیکھا؟ فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم نے آسمان سے آپ کے چہرے کو دیکھا. یہ آیت کریمہ بتاتی ہے دنیا میں لوگ پیاروں کا چہرہ دیکھتے ہیں اور پیاروں کے چہروں کی بات کرتے ہیں. رب کریم کی نظر میں خالق کائنات کے ہاں جس پیارے کا مقام اور مرتبہ ہے، درجہ حیثیت و ویلیو ہے، تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. تبھی تو حضور پاک علیہ السلام کے چہرہ دیکھنے کی بات رب کریم نے فرمائی ہے. میرے دوستو، نبی پاک علیہ السلام جو خاتم الانبیاء بن کے اللہ نے آپ کو ہمیں دیا ہے، اس پیغمبر کی ذات اقدس کا مقام اور مرتبہ، اس نبی کی ذات کا مرتبہ اگر دیکھنا ہو تو یہاں سے دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری کائنات کا، فلی یونیورسل، پوری کائنات کے ایریا کا اگر چیف گیسٹ بنایا ہے، مہمان خصوصی بنایا ہے، تو حضور پاک کی ذات اقدس کو بنایا ہے. اور مہمان خصوصی ہمیشہ پروگرام کے اینڈ میں آتا ہے، پروگرام کے آخر میں آتا ہے. ابن عباس کی روایت ہے رضی اللہ عنہما، اللہ کے رسول نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، رب نے مجھے اور قیامت کو یوں بھیجا ہے. پھر
हुज़ूर पाक ने इशारा फरमाया अपनी शहादत की उंगली का और उसकी पड़ोसन उंगली का, ये दो उंगलियां उठा के सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चीफ गेस्ट होने की टाइमिंग को बयान फरमाया कि मेरे बाद क़यामत आएगी, ये मैं अंबिया में आखिरी हूँ। ये दलील जहाँ खत्म नबुव्वत के अकीदे पर दी जाती है कि जैसे शहादत की उंगली उसकी साथी पड़ोसन उंगली के दरमियान कोई और उंगली नहीं है, ऐसे हुज़ूर पाक की जात और क़यामत में कोई नया नबी नहीं है, नई किताब नहीं है, नई शरीयत नहीं है, नया दीन नहीं है, नया मजहब नहीं है। ये जहाँ दलील खत्म नबुव्वत की है वहाँ दलील रुतबा पैगंबर की भी है कि अल्लाह ने इस कायनात में हुज़ूर पाक को आखिरी बनाया, तभी तो क़यामत से पहले हुज़ूर पाक ने अपने आप का आना बयान फरमाया। मेरे दोस्तों, इस कायनात में पैगंबर चीफ गेस्ट है, रिसालत बाब इस्लाम आए हैं, उसके बाद क़यामत की निशानियां पूरी हो रही हैं। मेरी बात का मतलब ये है, रसूल पाक की जात ये है, अल्लाह ने पूरी कायनात का मेहमान खुसूसी बनाया है। और मेरे दोस्तों, मैं एक बात आपकी खिदमत में करने लगा हूँ, यहाँ आप और हम सब बैठे हैं, हम अपने अपने मौके पे गुफ्तगू कर रहे, कोई नात पढ़ रहा, कोई तिलावत कर रहा, कोई अपने जिक्र और अज़कार की बात कर रहा, हम यहाँ मौजूद हैं। अगर हमारे यहाँ बड़े, चलो मैं लाहौर में हजरत शेखुल हदीस मौलाना फजलुर रहीम अशरफी दामत बरकातुहुम की बात करता हूँ, वो तशरीफ ले आए तो हमारे बयानात खत्म हैं, हमने हजरत की बात सुननी है। या इसी तरह हम मौजूद हैं, कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान हाफिज़हुर रहमान तशरीफ लाए, हमारी गुफ्तगुओं का एंड है, फिर हजरत की बात हम सब ने मिलके सामिईन के साथ सुननी है। ऐसे नबी पाक की बात कर रहा हूँ बिला तशबीह, बगैर किसी मिसाल के, सिर्फ मैंने आपके ज़हन को करीब करने के लिए बात की है। रब्बे करीम ने भी नबुव्वत का रुतबा इतना बड़ा, नबुव्वत का मकाम इतना बड़ा, नबुव्वत का दर्जा इतना बड़ा, नबुव्वत की वैल्यू इतनी बड़ी, नबुव्वत की हैसियत इतनी बड़ी रखी है। रब्बे करीम ने इस कायनात के जो मेहमान आए हैं, यानी अंबिया आए हैं, उन अंबियाए कराम को भी अल्लाह ने पाबंद फरमाया था, मैंने तुम्हें किताब भी दी है, तुम्हें हिकमत भी दी है, नबुव्वत भी दी है, रिसालत भी दी है, पैगंबरी भी दी है, अपना नुमाइंदा बनाया है। लेकिन याद रखो, तुम्हारे अदबार नबुव्वत के अंदर जब कलमा तुम्हारा चल रहा, शरीयत तुम्हारी चल रही, दीन तुम्हारा चल रहा, दावत तुम्हारी चल रही हो, वही अखज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। रब्बे करीम ने फरमाया हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिमुस्सलाम तक कि मैं आपसे एक बात का वादा, एक बात का अहद, एक बात का मीसाक, एक बात का पैमान, एक बात का प्रॉमिस ले रहा हूँ, तो मुझसे बात पक्की कर लो। अल्लाह आप हुक्म फरमाए, हम आपकी बात मानेंगे। तो रब्बे करीम ने इस धरती की करीम शख्सियत से ये वादा फरमाया कि अपने अपने दौर में अपनी अपनी शरीयत की दावत दोगे, अपने अपने दीन के कलमे को उम्मत को पढ़वाना लाज़िम करोगे। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हारे दौर नबुव्वत में सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए, लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्नहु, फिर आपने अपनी नबुव्वत को अपनी जगह रख के, अपने कलमे को अपनी जगह रख के, अपनी रिसालत को अपनी जगह रख के, अपनी पैगंबरी को अपनी जगह रख के, अपने मामलात को क्लोज करके, लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्नहु, तुमने भी, तुम्हारी उम्मतों ने भी कलमा हुजूर का पढ़ना है, मदद हुजूर की। इससे समझ आया रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस वो है, जब हुज़ूर पाक आ जाए फिर सबके अदवार नबुव्वत में नबुव्वत बंद हो जाएगी, रिसालत बंद हो जाएगी, पैगंबरी बंद हो जाएगी, कलमा चलेगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा का चलेगा, दीन चलेगा, आमना के दुर्रे यतीम का चलेगा, मजहब चलेगा, अब्दुल्ला के नख्ते जिगर का चलेगा। इसी तरह कलमे की बात होगी तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की होगी। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को रब ने ऐसा नबी बनाया, पिछले अंबिया भी हुजूर पे ईमान लाएंगे, उनकी नबुव्वतें, उनकी उम्मतें भी हुजूर पे ईमान लाएंगे।
तभी तो कासिम उल-उलूम वल खैरात बानी दारुल देवबंद हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत इमाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, अल्लाह इनकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। वो फरमाते हैं लोगों ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि बाकी भी नबी हैं, हुज़ूर पाक भी नबी हैं, लेकिन एक फर्क बड़ा वाज़ेह है। वो फर्क ये है बाकी नबीउल उम्मत है, ये नबीउल उम्मत भी है, नबीउल अंबिया भी है। नबीउल उम्मत उसे कहते हैं जिसका कलमा उम्मत पढ़ती है, नबीउल अंबिया उसे कहते हैं जिसका कलमा उम्मत भी पढ़ती है, उम्मत के अंबिया। क्योंकि मेरे पाक पैगंबर को रब ने वही रुतबे वो मर्तबे दिए हैं जो बाकी अंबिया को मिले। बाकी अंबिया को रुतबे मिले, उनके रुतबात अपनी जगह, लेकिन जो रुतबा हुजूर को मिला है वो सबसे आला, सबसे औला, सबसे अशरफ, सबसे अकरम, सबसे बेहतर, सबसे अफजल मेरे पाक पैगंबर को रुतबा दिया गया है। हुजूर पाक के सर पे वो ताजे सुल्तानी सजा है, हुजूर पाक के कंधे पे वो तमग़ाए क़यादत सजे हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस ताज से ताज भर किया गया कि हुजूर पाक इमामुल अंबिया बने हैं। मैं उस्ताद मुकर्रम शहीद नामूस सहाबा अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद रहमहुल्लाह की जुबान से कहूँ, हजरत हैदरी फरमाते थे हुजूर पाक को रब ने इमामुल अंबिया बनाया है। फिर अपने सिंधी लहजे में कहते ओए लोगो इमाम केड़ो होंगे, आपको पता है इमाम कौन होता है? फरमाते हैं कभी जाओ मस्जिद में पहुंचो, मुसल्ला इमामत को भी देखो, सुफूफ मुक्तदियान को भी देखो। एक मुक्तदियों की सफ होती है, एक इमाम का मुसल्ला होता है। जहां मुक्तदी होते हैं वो इमाम के पीछे होते हैं, जहां मुसल्ला होता है वो इमाम मुक्तदियों के आगे होता है। लेकिन साथ एक जुमला फरमाते इमाम वो होता है जिसके आगे तो आगे बराबर भी कोई नहीं होता, जिसके आगे तो आगे हमसर भी कोई नहीं होता, जिसके आगे तो आगे हम बल्ला भी कोई नहीं होता, जिसके आगे तो आगे मुहाजात भी कोई नहीं होता। इससे पता चला इमाम वो है, आगे भी कोई नहीं, बराबर भी कोई नहीं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को रब ने इमामुल अंबिया बनाया है। इससे पता चला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया है। अंबिया के रुतबे दर्जे मकाम और मर्तबे अपनी जगह मुसल्लम, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा जैसा कोई नहीं। आपके ज़हन में सवाल उठेगा मौलाना अगर हुज़ूर पाक जैसा कोई नहीं है आप ये बात कैसे कर रहे हो? हम देखते हैं मेराज के रात हुज़ूर पाक ने मुसल्ला इमामत पे इमामत फरमाई है। अंबिया मुक्तदी बने हैं, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिमुर रिज़वान ने हुज़ूर पाक की इब्तिदा में नमाज पढ़ी है। हुज़ूर इमाम है, लेकिन पीछे हुज़ूर के वालिद हजरत आदम है, पीछे हुज़ूर के वालिद हजरत इब्राहीम है, पीछे हुजूर के वालिद हजरत इस्माइल है। माउद्दुब्न अदनान तक 21 नस्ब पूरे होते हैं। मेरे पाक पैगंबर के वालिद हजरत इस्माइल है, उनके बाद हजरत इब्राहीम है, फिर आगे 17 नस्लें चलती हैं। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम वालिद है, और वालिद का रुतबा फाइल, वालिद का रुतबा बेहतर, वालिद का रुतबा औला, वालिद का रुतबा आला, वालिद का मकाम बुलंद है, और आपका मकाम जितना भी हो ये छोटा होता है। आप इमामुल अंबिया में रुतबा हुजूर का बड़ा किस बेस, किस रीजन, किस बुनियाद, किस वजह पे कह रहे हो? मैं कहूंगा बात सुनो। जब एतराज होता है, एतराज करने के लिए सबूत ये है कि बंदा चीज को दोनों तरफ से देखे, दोनों तरफ से देख के, हर तरफ से सोच के, हर तरफ को देख के फिर सवाल किया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो हम सवाल में कोई साइड मिस कर जाएं, आंसर देने वाला उस साइड को लेके हमें जवाब दे दे। इसलिए आपने सवाल में कई साइडें मिस कर दी हैं। भाई कैसे साइडें मिस हुई हैं? मैंने कहा देखो, मतलब आपने तस्वीर का एक रुख देखा है, तस्वीर के दोनों रुख नहीं देखे। मैं एक मिसाल पेश कर रहा हूँ। यहाँ एक शख्स आया है, वो नौजवान है, वो बेटा है, उसके साथ वालिद है, मस्जिद में भी आए हैं, घर में भी बैठे हैं। जब बेटा और बाप मस्जिद में आएंगे देखा जाएगा बेटा इल्म में, बेटा हिफ्ज़ में, बेटा क़िराअत में, बेटा तक़वा में, बेटा तहारत में, बेटा लिल्लाहियत में, बेटा महारत में, इल्म में वालिद से आगे, वालिद से औला, वालिद से बरतर है। अब नमाज की जरूरत आएगी, हम ये नहीं कहेंगे भाई बाप का रुतबा बड़ा, बाप का मकाम बड़ा, बाप की हैसियत बड़ी है इसलिए उसे इमाम बना दो। कहेंगे जी नहीं, वो बात घर की है, ये बात मस्जिद की है, वो बात निजी महफिल की है, ये बात इज्तिमाई महफिल की है, वो बात अलहदा की है, ये बात इमामत की है। इधर बेटे का रुतबा जितना बाप से छोटा हो, लेकिन इल्म में, तक़वा, तहारत, लिल्लाहियत, क़िराअत, हिफ्ज़ में बेटा आला औला है। ये
इमामत कराएगा। अब जब ये दोनों घर जाएंगे उस वक्त पाँव दबाने की जरूरत पड़ेगी। अब पाँव बाप नहीं दबाएगा क्योंकि ये बाप है, पाँव बेटा दबाएगा। पता चला अगर निस्बत देखें इस चीज की कि मुआमला क्या है, तो वालिद की निस्बत घर में बड़ी, निस्बत देखें इल्म के लिहाज से तो बेटे का इमाम होना बड़ा। मैंने कहा तुमने तस्वीर का एक रुख देखा, हजरत आदम, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल अलैहिमुस्सलाम के लिए एतराज कर दिया कि वो वालिद हैं, उनका मकाम क्या है। तुमने तस्वीर का एक रुख देखा है, हमने तस्वीर के दोनों रुख देखे हैं। मेराज की रात ये अंबिया हुजूर को मिले तो इब्न सालेह कहकर मिले, ए मेरे प्यारे बेटे। पता चला जब बेटे की आएगी बात फिर ये बड़े हैं, लेकिन जब बात आएगी इल्म की, बात आएगी तकवा तहारत और नबूवत की, तो फिर बड़े रसूलुल्लाह हैं। इसलिए मैंने इमामुल अंबिया कहा। मेरे नबी का रुतबा, मेरे नबी का दर्जा इमामत में सबसे आला और औला, मेरे नबी का मकाम और मर्तबा इमामत में सबसे आगे। तभी तो कहा है जहां के सारे कमालात आका तुझ में हैं, तेरे कमालात किसी में नहीं मगर दो चार। क्या मतलब? बाकी अंबिया को रब ने रुतबे दिए, बाकी अंबिया को रब ने मर्तबे दिए, लेकिन उनके दर्जे अपने अपने दौर तक, अपने अपने मकाम तक, वो जिस जिस मकाम पे हैं उन मकामों से मेरा बाप पैगंबर बहुत आला, बहुत आगे, बहुत फारिक है। आप कहेंगे कैसे? मैं आपकी खिदमत में एक बात करने लगा हूँ, तवज्जो रखना। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अगर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को तख्त शाही, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में अल्लाह ने लोहे को मोम की तरह वअलन्ना लहुल हदीद कहकर बिल्कुल मोम की तरह बना दिया है, तो मेरे पाक पैगंबर को भी रब्बुल इज्जत ने मकाम दिया है। वहां लोहा कट के सीधा हो जाता। मेरे पाक पैगंबर के हाथ में जब अबू जहल की बात सामने आई, कंकर मुखातिब हुए, अभी हुजूर का हाथ उठा था, कंकरों को लगा नहीं है, वो कंकर बोले, वो कंकर चीखे, वो कंकर कहने लगे हुजूर पाक हम आपका कलमा पढ़ते हैं। अगर उनके हाथ में लोहा बोलता था, मेरे पाक पैगंबर के मर्तबे से मुखालिफ के हाथ में पत्थर बोल पड़ा। हाँ, उनका रुतबा अपनी जगह, उनका मर्तबा अपनी जगह, उनका दर्जा अपनी जगह, उनकी हैसियतें अपनी जगह, वो पाक पैगंबर के मकाम और मर्तबे हैं, तो मेरे पाक पैगंबर का दर्जा भी उनसे आला। आप कहेंगे कैसे? मैं एक जुमला कहने लगा हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रुतबा मिला, वो पहुंचे हैं दरिया पे, फनफजरत मिन हुस्नता अशरत आइना, वहां पर 12 चश्मे, राखी मूसा लगी, असाए मूसा लगा, वो 12 चश्मे, 12 रास्ते दरिया में बंद पड़े। लाहौर के गयूरों, 3 बातें याद रखना, हजरत मूसा भी जमीन पे थे, वो दरिया भी जमीन पे था, एक बात। दूसरी बात, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो डंडा दरिया को मारा था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा जाके दरिया को लगा था, दरिया भी जमीन पे, मूसा भी जमीन पे, डंडा भी लगा है। 3 बातें तय हैं। आओ मेरे पाक पैगंबर के रुतबे को देखने के लिए। मेरे पाक पैगंबर जमीन पे है। कायनात का एक चैलेंज आया, मक्का के काफिर कहने लगे, हमने बड़े बड़े सोहाग के पास जाकर, शायरों के पास जाकर, हिप्नोटाइज करने वालों के पास जाकर, दिमाग को माफ करने वाले जादूगरों के पास जाकर पूछा है, बताओ ये जादूगर है, ये काहिन है, ये शायर है, या क्या है? सबने कहा इम्तिहान ले लो। हमने पूछा इम्तिहान का पेपर बताओ, उन्होंने पेपर लिख दिया। हम पेपर आउट करने लगे हैं, आप हमें एक जवाब दे दें, हम मान जाएंगे आप नबी हैं या जादूगर हैं। उधर पाक ने पूछा क्या है? कहा हमने सुना है जादूगरों की जादूगरी जमीन पे चलती है, फिजा पे नहीं चलती, आसमान पे नहीं चलती। आप यहाँ की बात करते हैं, आप हमें आसमान के चांद पर अपना कोई तसर्रुफ करके दिखाएं। उधर पाक इस्लाम ने अल्लाह से दुआ की, क्योंकि अहले सुन्नत का नजरिया है मौजज़ा, ये काम अल्लाह का है, लेकिन रब नबी के हाथ पर उसको जाहिर करता है। उधर पाक ने दुआ की है, अल्लाह ताला ने उधर पाक की दुआ कबूल की है। सूरत कमर 12 नंबर 27 बोल उठा, एक तरफ कमर, पैगंबर ने उंगली उठाई, चांद को टुकड़े हुआ, लाहौरी गयूरों, हजरत मूसा जमीन पे थे, दरिया जमीन पे था, डंडा भी लगा था। वो नबी है, हुजूर पाक जमीन पे है, चांद जमीन पे नहीं है। हुजूर की उंगली सिर्फ उठी है, चांद को लगी नहीं है, चांद तो टुकड़ों में बदल गया है। वो मुक्तदी है, ये इमाम